ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਡੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ 15 ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਨ ਏਜਿਸ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਆਫ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇਜ਼ 27 ਈਅਰਸ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਕੀ ਹੈ? 27 ਈਅਰਸ। ਟੂ ਪਲੇਅਰਸ ਵਿਦ 24 and 27 years of age are replaced by new players of 23 and 28 years of age। ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 24 ਤੇ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ 23 ਤੇ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਆਫ ਦ ਟੀਮ ਨਾਓ? ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 27 ਸਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 27 ਈਅਰਸ। नेक्स्ट है, द एज ऑफ शाम इज 1/3 दैट ऑफ हिज मदर। जो शाम की एज है वो 1/3 है उसकी मदर की एज से। मान लो मदर की एज है हुण M, ठीक है, शाम की एज उसकी मदर दे 1/3 है, तो शाम की एज होगी 1/3 इंटू उसदे मदर की एज। ही इज 2 years ओल्डर दैन हिज सिस्टर। ओहो अपनी सिस्टर नालों 2 साल वड्डा है, ठीक है। शाम अपनी सिस्टर नालों 2 साल वड्डा है। द एज ऑफ हिज सिस्टर बी 8 years। उसदे सिस्टर की एज की है? 8 साल। जे उसदे सिस्टर की एज 8 साल हुई तो इसका मतलब की है कि शाम की एज कितनी हुई? 10 साल, ठीक है। इतों अपने को शाम की एज आ गई 10 साल, तो उसकी मदर की कितनी हुई? 1/3 इंटू M। आह वाली है अपने को इक्वेशन। इस आप जो वैल्यूज़ भरांगे तो देखो, शाम की एज आप भरती 10, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू उसकी मदर की एज, तो उसकी मदर की एज आ गई 30 साल। तो इस आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन 30 ईयर्स। नेक्स्ट है, A B C D आर 4 फ्रेंड्स। A B C ते D 4 फ्रेंड्स है। एवरेज एज अपन दी हुई है A ते C दी। A ते C दी देखो एवरेज एज अपन दी हुई है, दोनों की आप एवरेज एज इस तरह कटांगे। ये अपन दी हुई है 35 के इक्वल। एंड दैट ऑफ B एंड D इज 40 ईयर्स। अपन B ते D की एवरेज एज दी हुई है 40 ईयर्स। B C D की एवरेज एज अपन दी हुई है, देखो हुण B C D 3 जने हो गए, इन्हां दी आपां नूं एवरेज एज दी हुई है 40 साल। द सम ऑफ द एजिज ऑफ A एंड D इज इक्वल टू दैट ऑफ B एंड C। जे आपां सम करिए A ते D दा, ओह इक्वल है B ते C दी एज दे सम दे। फाइंड आउट द एजिज ऑफ A B C एंड D। अपन ने सारे दियां एजिज फाइंड करनी है। इधर इत्थे देखो अपने कोल A प्लस C कितना आ गया? 70। इथों देखो B प्लस D आ गया 80। इथों देखो B प्लस C प्लस D, ये अपने कोल कितना आ गया? 120। इन्हां दोनों इक्वेशनस तो देखो हुण अपने कोल की बन गया? B प्लस डी नाल B प्लस डी कैंसल हो जाएगा, तो अपने को देखो इतने C की एज कितनी आ गई? 40 साल, ठीक है। हुण जे अपने को C की एज आ गई तो यह वाली इक्वेशन तो यह वाली इक्वेशन तो A की एज आ जाएगी। A की एज देखो कितनी आ गई? A की एज अपने को आ गई 30 साल,
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, C ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਤੇ C ਦੀ ਏਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। A ਤੇ C ਦੀ ਏਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਈ 30 + D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B + 40। ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, D - B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ D + B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 2D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 45। ਠੀਕ ਹੈ, D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45 ਆ ਗਈ ਤਾਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 35। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 30, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 35, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 40 ਤੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 45। तो इसका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन 30, 35, 40, 45। नेक्स्ट है एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स। 30 स्टूडेंट्स की अपन को एवरेज एज दी हुई है कि 15 साल है। इफ द टीचर्स एज इज ऑल्सो इंक्लूडेड दैन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1। हुण देखो अपन ने टीचर की एज फाइंड करनी है। तो देखो एवरेज एज 30 स्टूडेंट्स की 15 साल है। इसका मतलब की है कि 30 स्टूडेंट्स की एज का सम कितना हो गया, 450। ठीक है, हुण जे टीचर की एज इंक्लूड कर दी जाती है, मतलब 31 बंदे हो गए, 31 बंदियां की एज होगी स्टूडेंट्स प्लस टीचर। तो उन्होंने एवरेज एज 1 इंक्रीज हो जाती है। पहला कितनी सी 15, हुण कितनी हो गई 16। यही होया। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, 31 × 16। 31 × 16 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 496। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਸਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਏਜ ਆ ਜਾਏਗੀ 496 - 450। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 46 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ 46 ਈਅਰਸ। Next है Ashok's mother was 3 times as old as Ashok 5 years ago। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਮਦਰ 3 ਟਾਈਮਸ ਓਲਡ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਲੋਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਹੁਣ ਏਜ ਹੈ A, ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਹੈ M। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋਈ, A - 5 ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, M - 5। ठीक है, अशोक की मदर 5 साल पहला उस नालों 3 गुना ओल्ड सी। ठीक है, मतलब अशोक की मदर उस नालों 3 गुना ओल्ड सी। इस तरह इक्वेशन बनी। आफ्टर 5 ईयर्स शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अशोक। जब आप 5 साल बाद की गल करिए तो वह ट्वाइस ओल्ड रह जाएगी अशोक नालों। ठीक है, हुण आपां यह इक्वेशन सॉल्व करांगे। तो देखो कितना आया, 3A - 5 इज इक्वल टू M - 5। इत्थे कितना आया 2A, इत्थे आएगा 15, मल्टीप्लाई होएगा ना 3 × 5। ठीक है, 2A + 10 इज इक्वल टू M + 5। हुण इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं आपां सॉल्व कर लैंदे आ। तो देखो इत्थे आया 3A - M इज इक्वल टू 10 कि इत्थे आया 2A - M इज इक्वल टू -5। ठीक है, हुण देखो जे आपां इन्हां नूं माइनस करांगे तो कितना आएगा, ये आएगा इहदे नाल ये कैंसल हो जाएगा। इधर आ गया A ते अशोक की एज आ गई 15 साल। जे अशोक की एज 15 साल आ गई तो उसकी मदर की कितनी आ गई, तो देखो 3A - M इज इक्वल टू 10। यह अपने को इक्वेशन है, इस दे विच आपां अशोक की एज भर देंगे तो इत्थे अपने को आ गया 45 - M इज इक्वल टू 10। तो M की अपने को वैल्यू आ गई 35 साल। ठीक है, वैसे अपन इतने अशोक की एज कैलकुलेट करनी सी। ठीक है, तो अपने को अशोक की एज है 15 साल। तो इसका आंसर आ गया सेकेंड ऑप्शन 15 ईयर्स। नेक्स्ट है अ मैन इज 3 ईयर्स ओल्डर दैन हिज वाइफ and 4 times as old as his son। एक मैन अपनी वाइफ नालों 3 साल वड्डा है। मतलब जे उस मैन की एज M है तो उसकी वाइफ की कितनी होगी, वाइफ + 3
and 4 times as old as his son. ਤੇ 4 times ਹੈ ਉਸਦੇ son ਦੇ. If the son age becomes 15 years old after 13 years, ਜੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ son ਦੀ age 15 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ son ਦੀ age 12 ਸਾਲ. ਠੀਕ ਹੈ, son ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ age ਹੈ, ਤਾਂ son ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ man ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੀ age ਹੈ. 12 into 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 48 ਸਾਲ. What is the present age of wife? present age wife ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ man ਦੀ ਜਿੰਨੀ age ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ wife ਦੀ age ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ wife ਦੀ age ਹੋਈ 45 ਸਾਲ. ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ fourth option 45 years. Next है Naresh age is 4 years less than twice the age of his brother. ਨਰੇਸ਼ ਦੀ ਏਜ ਉਸ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਵਾਈਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੈਸ ਹੈ. ਨਰੇਸ਼ ਦੀ ਏਜ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੈਸ ਹੈ. ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਹਿਜ਼ ਏਜ. ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ, 2x - 4 ਜੋ ਕਿ ਹੈ fourth option. ਤਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਆਇਆ fourth option 2x - 4. Next है Ravi is younger to his brother by 3 years. रवि अपने ब्रदर तो 3 साल छोटा है, मतलब रवि दी एज है उसके ब्रदर नालों 3 साल घट. At the time of the birth of his sister the age of his father was 28 years. ठीक है, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ ਸੀ 20 ਈਅਰਸ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਏਜ ਸੀ 26 ਈਅਰਸ. ਦ ਏਜ ਆਫ ਹਿਸ ਸਿਸਟਰ ਵਾਸ 4 ਈਅਰਸ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਬਰਥ ਆਫ ਹਿਸ ਬ੍ਰਦਰ. ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਏਜ 4 ਸਾਲ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. What was the age of his father at the time of the birth of Ravi? जिस टाइम ते रवि का बर्थ होया उस टाइम ते आपने उसके फादर की एज दसनी है. तो हुण देखो जे आपां नूं ये पता लग जाएगा रवि अपनी सिस्टर नालों कितना वड्डा या छोटा है, तो आपां नूं ये पता लग जाएगा कि उसके फादर की एज कितनी सी, क्योंकि आपां नूं इन्हां ने दित्ती हुई है कि उसके सिस्टर के बर्थ के टाइम उसके फादर की एज सी 28 ईयर्स. तो देखो हुण ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਵੀ ਮਾਈਨਸ ਸਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -7. ਤਾਂ ਸਿਸਟਰ ਮਾਈਨਸ ਰਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 7 ਈਅਰਸ. ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਰਵੀ ਨਾਲੋਂ 7 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ. ਜੇ 7 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ इसका मतलब रवि उस 7 साल बाद होया. ठीक है, तो जे उसके फादर की एज उसकी सिस्टर के बर्थ के टाइम से 28 ईयर सी, तो इसका मतलब रवि के बर्थ टाइम से कितनी होएगी, तो देखो 28 + 7 तो यह आ गया 35 ईयर्स. तो इसका आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन 35 ईयर्स. नेक्स्ट है टुडे इज केतन्स बर्थडे. आज केतन का बर्थडे है. 1 year from today he will be twice as old as he was 10 years ago. केतन ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਖੋ केतन + 1 he will be twice as old, twice ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਸੀ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ केतन ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਏਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ. तो देखो k + 1 = 2k - 20. ठीक है, तो हुण k अपने को इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो इधर अपने को आ जाएगा 21. तो केतन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 21, जो कि है थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट है द एवरेज वेट ऑफ 8 persons of a family is increased by 1 when one of the members whose weight is 60 kg is replaced by new person.
ਜੇ 8 ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 60 ਕਿਲੋ ਦੇ weight ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਰਿਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਊ ਪਰਸਨ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਸਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ weight ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਕਿਲੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 8 ਪਰਸਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 60 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਰਸਨ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 60 + 8 68 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਰਸਨ। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन 68 किलोग्राम। नेक्स्ट है 2 years ago a mother was 4 times as old as his son। 2 साल पहला मदर दी एज की सी 4 टाइम सी उसदे सन दी एज थे। 6 years from now her age will become more than double her son's age by 10 years। 6 साल बाद की होया will become more than double, डबल नालों किन्नी वध गई 10 साल। what is the present ratio of their ages? ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ रेशो फाइंड करनी है। तो देखो अपने को आ गया मदर -2 = 4s - 8। इत्थों अपने को आ गया 4s - m = 6। इस तरह यही आप फाइंड करांगे m + 6 = 2s + 22। ठीक है, इत्थे अपने को आ गया 2s - m = -16। ठीक है, इन्हों आप माइनस करांगे ये ये कैंसल हो गया तो 2s आ गया = 22 दे। तो अपने को सन की एज आ गई 11 साल। ठीक है, इत्थे अपने को सन की एज आ गई 11 साल। देखो हुण मदर की एज अपने को कितनी आ गई, इत्थों आप कैलकुलेट कर लाँगे 4s - m = 6। तो देखो मदर की एज अपने को आ गई 4 × सन की एज -6। 44 - 6 कितना आ गया 38 साल। तो दोनों की रेशो कितनी हुई 38:11 जो कि है सेकंड ऑप्शन। तो इसका आंसर आ गया 38:11। नेक्स्ट है द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years ago was 27 years। जे 3 साल पहला उन्हों की एज 27 साल सी, इसका मतलब की है कि हुण उन्हों की एवरेज एज कितनी है 30 साल। दैट ऑफ वाइफ एंड द चाइल्ड 5 years ago was, जे आप एवरेज एज कढ़ीए वाइफ तो चाइल्ड की 5 साल पहला तो उन्हों की एज कितनी है एवरेज एज 20 साल। इसका मतलब हुण उन्हों की कितनी है, देखो जे आप हस्बैंड वाइफ तो चाइल्ड की एवरेज एज की गल करिए तो वह 30 साल है। जे आप वाइफ चाइल्ड से वाइफ तो चाइल्ड की गल करिए एवरेज एज की 5 साल पहला तो वह 20 साल सी। इसका मतलब हुण वाइफ से चाइल्ड की एवरेज एज कितनी है 25 साल। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड अपने हस्बैंड की प्रेजेंट एज दसनी है। तो देखो ये सी कि अपने को एवरेज एज, ठीक है, ये अपने को एवरेज सी। तो हुण आप टोटल कढ़ लैंने हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड कितना आ गया 90 ईयर्स। तो इधर अपने को वाइफ प्लस चाइल्ड की एवरेज एज 25 सी, तो यह आ गई 50 साल। अपने हस्बैंड की कढ़नी है तो अपने को हस्बैंड की आ गई, देखो आप माइनस करांगे ये अपने को कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, जो आप इन्होंने माइनस करांगे तो यह आ गया 40 साल। तो हस्बैंड की प्रेजेंट एज अपने को आ गई 40 साल जो कि है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स इज़ 1:2। जे आप प्रेजेंट एज की गल करिए ब्रदर्स की रेशो की तो वह 1:2 है। 5 साल पहला तो देखो हुण आप पहले लिख लेंगे ब्रदर 1 तो ब्रदर 2, इन्हों की रेशो कितनी है 1:2। 5 साल पहला द रेशो वॉज 1:3। 5 साल पहला ब्रदर 1 - 5 डिवाइड बाय B2 - 5 इन्हों की कितनी सी 1/3। वट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। 5 साल बाद उन्होंने एज का रेशो की होएगा।
देखो 2b1 इज इक्वल टू b2 आ गया। इतों अपने को की आ गया 3b1 माइनस 15 इज इक्वल टू b2 माइनस 5। ठीक है, इतों अपने को आ गया 2b1 माइनस b2 इज इक्वल टू 0। इतों आ गया 3b1 माइनस b2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, दोनों को माइनस करांगे तो अपने को देखो कितना आ गया b1 इज इक्वल टू 10। तो हुण देखो अपने को ब्रदर एक ब्रदर की आ गई 10, b1 की आ गई जे 10, तो इसका मतलब b2 की कितनी है 20। ठीक है, क्योंकि दोनों की रेशो कितनी आनी चाहिए है 1/2। तो जे आप 5 साल बाद की गल करिए, 5 साल बाद की गल करिए तो 15/25 आ गई। तो देखो यह गया 3 ते तो यह गया 5 ते, तो इन्हों की रेशो कितनी आ गई 5 साल बाद 3:5 हो गए है थर्ड ऑप्शन। तो इसका आंसर आ गया 3:5। नेक्स्ट है हर्षा इज़ 40 ईयर्स ओल्ड एंड रितु इज़ 60 ईयर्स ओल्ड। हर्षा की एज है 40 ईयर्स तो रितु की एज है 60 ईयर्स। हाउ मैनी ईयर्स अगो वॉज द रेशो ऑफ देयर एजेस 3:5। किन्ने साल पहला उन्होंने जो एजेस की रेशो सी वो 3:5 सी। तो देखो किन्ने साल पहला आपां नूं नहीं पता किन्ने साल पहला, तो आप एक्स एज्यूम कर लैने आ उन्होंने एजेस की रेशो की सी 3:5। तो हुण आप इसनूं सॉल्व करांगे तो देखो कितना आ गया 200 माइनस 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 3x। तो हुण देखो ये आ गया v इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई 10 ईयर्स। तो 10 साल पहला उन्होंने एजिज की जो रेशो सी वो सी 3:5। तो इसका आंसर आ गया 10 ईयर्स जो कि है फर्स्ट ऑप्शन। नैक्सट है द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सनस आर। जे आप प्रेजेंट एज की गल करिए 2 पर्सन की तो वो है 36 ते 50 साल। इफ आफ्टर n years the ratio of their ages will be 3:4 then the value of n is। यह लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, मैं तुम जस्ट ये क्वेश्चन तां करवा रही हाँ कि इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम के पूछ सकते हैं, तो तुम कन्फ्यूज नहीं होना। तो देखो 36 + n बाय 50 + n इज इक्वल टू 3/4। इतों अपन n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो ये अपने को आ गया 144 + 4n इज इक्वल टू 150 + 3n। ठीक है, n अपने को आ गया 6। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन 6। तो ये सी प्रॉब्लम्स ऑन एजिज के क्वेश्चन। प्रॉब्लम्स ऑन एजिज के ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। तुसी हुण कोई भी क्वांट की बुक लैके उस इन्होंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जेकर तुहानूं इन्हां क्वेश्चन के कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो तुसीं मैनूं कमेंट्स के पूछ सकते हो या तुसीं मैनूं मेल कर सकते हो। ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस वीडियो में इन्ना ही। हुण आपां मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। तो जेकर तुहानूं ये वीडियोज़ पसंद आन तो इन्होंने लाइक तो शेयर करना ना भुल्लियो। तो जेकर तुसीं साडे चैनल की स्टडी मीटर नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकन है उसनूं जरूर दबाओ तां जो तुहानूं लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशनस मिलदियां रहन। थैंक यू।